Bismillahirrahmanirrahim. In the last webinar, we in fact had discussed about the USMLE Step 1. And in today's class, we will focus on another part of this licensing exam. Second component of this, that's called the USMLE Step 2 CK. C stands for clinical and K stands for knowledge. This is USMLE Step 2 clinical knowledge. And I see that USMLE Step 1 that you have already discussed with me, but you know that was called as the boats. We call the boats. Boats means the USMLE Step 1. There's another famous name for this. The USMLE Step 1. This Step 1 is not enough. You know that you have to surpass and you have to cover yet another pair of components here. It's called Step 2. You call it Step 2, but the Step 2 has two components. One is called clinical knowledge, that's called USMLE Step 2 CK. Another called the USMLE Step 2 CS, that's called the clinical skills. And if you are actually seeing here in this also, during this whole discussion and this webinar, we'll be giving you some scripts you see about the USMLE Step 1 also. We will give some review about that during this whole discussion. We'll not go into the USMLE Step 1 right now. During that, we will compare that, how this USMLE Step 2 is different from USMLE Step 1. USMLE Step 2 CK, I say, not CS. CS is something different. You say together is totally different. Different means in many respects it is different. One big difference is that these two steps, especially USMLE Step 1 and USMLE Step 2 CK, you can take both of these exams in your own country, in your native country. And this you can give even in your city if you are actually living in some big cities. ये दो steps आप यहीं पे भी दे सकते हैं. USMLE Step 1 और Step 2 का ये component, CK components के बारे में आज जब discuss करने जा रहे हैं. And if you see USMLE Step 1 और Step 2 CK, जिसकी आज हम डिस्कशन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है, ये दो स्टेप को जरूरी नहीं है कि आप पहले USMLE Step 1 दें और उसके बाद USMLE Step 2 CK दें. आप CK पहले भी दे सकते हैं और USMLE Step 1 आप बाद में भी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों साथ भी दे सकते हैं. आप एक साथ ही दोनों के टिकट ले सकते हैं. And you can actually give both of these steps together during the one sitting. In 2 different days, obviously, but you see that you can give them together. So sequence कोई ज़रूरी नहीं. It can be Step 1 before, like in sequence, in Step 2 CK after, or CK before and Step 1 after, or both together even. तो ये दोनों आप साथ भी कर सकते हैं. आपको बताया हमने, you can give like these two. आप इस sequence को समझ लें पहले से. It depend करता है कि आपको for which step you are more prepared. Now this exam especially is very important for the residency program. For residency program, Step 1 and Step 2 CK, they both are very important. And obviously Step 2 CS is also important, but these two are in fact important for the visa purpose and important for the residency program also. Step 2 CS, that's called clinical skills. इसके बारे में हम अगले वेबिनार में डिस्कस करेंगे. So all the things we cannot actually at one sitting we cannot actually discuss all of them together. But once we are discussing here Step 2 CK, we will compare it with Step 1 also. तो उसके कुछ important चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिकॉल भी करते रहेंगे जैसे जैसे इनके कुछ चीजें आपस में comparable होंगी. So this will be important for residency purpose, Step 1 as well as Step 2 CK.
एंड श्योरली इट विल फॉलोड बाय, ये दोनों साथ आपके होंगे तो फिर आप CS के लिए क्वालिफाई करेंगे. And that CS, that is called clinical skills, this is the exam that is given only in the United States. The 5 big cities of the United States, they have the centers. फिर आप अपनी बुकिंग करेंगे उन सेंटर्स में से किसी एक में जो आपको फिजिबल है. After you present these 2 certificates or the 2 mark sheets of step 1 and step 2 CK, इन दोनों की मार्क शीट आपके हाथ में होंगी तो then you will be eligible for appearing in CS. अब यहाँ पर आपको मैंने बताया पहले भी कि step 1 it was 8-hour MCQ single day session, but this one, this CS, that is the CK, I'm sorry, CK, this is USMLE step 2 CK, or say clinical knowledge exam. As clinical knowledge exam, this is a little longer. It is a 9-hour MCQ session, single day MCQ session. इस एग्जाम में आपको एक ही दिन में 9 आवर्स उस सेंटर के अंदर रुकना होगा जहां आपका एग्जाम अरेंज किया गया है. 9 hour session. USMLE step 1 was the 8-hour session, 8-hour MCQ single day session, and this is 9-hour MCQ single day session. This is the big difference. Yeah, this is one difference. Now in this, especially when you are going here in this, so 8-hour session, it's 9-hour session hai, so 9-hour session, 1 hour is the break. It's a break time, is interrupted break time. So when 1 hour means it's not 1 full hour, means at least 3 breaks you will, in fact you can avail 3 breaks each of 15 minutes in between the sessions. तो जो रियल वर्किंग सेशन है वो 8 आवर्स का है. एक सेशन जो है ना, एक आपका 1 hour, दिस इज फॉर द रेस्ट, फॉर द ब्रेक्स, एंड ब्रेक्स इज नॉट मोर देन 15 minutes. एंड देयर आर 3 ब्रेक्स. आप कहेंगे 3 ब्रेक्स तो फिर ये 45 minutes हो गए, 15 मिनट जो बचेंगे वो हम क्या करेंगे. 15 minutes are before the session starts, before the first session starts, there is a tutorial of the 15 minutes. आपको एक सिमुलेटर एग्जाम, आपको जो सिमुलेटिंग एग्जाम आपसे दिलवाया जाता है कि इस तरीके से आपको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, और इस तरीके से आपके इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस जैसे इस्तेमाल होते हैं. वो अगर आप अवेल न करना चाहें, क्योंकि सबको पता होता है पहले से, तो यू कैन सेव दीज 15 minutes. या 15 minutes अगर सेव कर लेंगे तो वो जो 3 ब्रेक्स आपने लिए थे 15 minutes ईच के, वो 20 minutes ईच के ले सकते हैं. या फिर उनकी मर्जी है, वो आपको 15 minutes के 4 ब्रेक्स भी दे सकते हैं. तो यूजुअली दे आर 3 ब्रेक्स, एंड अगर 3 ब्रेक्स हुए तो 20 minutes ईच के. लेकिन आपको 1 घंटा रेस्ट का मिलेगा अगर आपने वो 15 मिनट अगर आपने ट्यूटोरियल के इस्तेमाल नहीं किए, देन फिर आपको 1 घंटा पूरा रेस्ट के लिए मिलेगा. 20 minutes ईच के 3 ब्रेक्स मिलेंगे, वरना 15 minutes ईच के 3 ब्रेक्स और 15 minutes का ट्यूटोरियल होगा. ठीक है, ऐसा ही हुआ था USMLE स्टेप 1 में भी. फर्क सिर्फ ये था कि दैट वाज 8-hour सेशन. 8-hour सेशन मींस 7 hours for the exams, of the 7 sets of the questions, और यहाँ 8 sets of the questions. इससे जाहिर हो गया कि यहाँ 8 सब्जेक्ट हैं. USMLE में 7 स्टेप 1 में 7 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ 8 सब्जेक्ट्स हैं. तो 8 सब्जेक्ट्स, 8 सेट्स ऑफ द एग्जाम्स. 8 सेट आपको एग्जाम्स के मिलेंगे. हर एग्जाम का जो एक सेट होगा दैट विल बी एक्सटेंडिंग ओवर 1 hour. जैसे वहाँ 1 hour था, वहाँ 1 घंटे के अंदर आपको 40 सवाल पूछे जाते थे. ये एक सेट है. फिर दूसरा सेट है, उसमें फिर 40 क्वेश्चंस MCQs. ये स्टेप 1 में से था. फिर 15 मिनट का ब्रेक. फिर ऐसे 2 सेट्स और 40 minutes ईच के. इसी तरीके से 7 सेट्स आपने पूरे किए, हर एक के 40 क्वेश्चन, 7 hours इस तरीके से आपके पूरे हो गए. और बीच में 15-15 मिनट का गैप किया, 15 मिनट का ट्यूटोरियल, और ये पूरा हिस्सा जो है ना, आप टोटली 8 hours आपने अपने वहाँ पर स्टे किया. पूरा एग्जाम आपका खत्म हो गया. लगभग ऐसा ही है, मिलता जुलता. फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ थे 7 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 40, यहाँ है 8 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 40.
40 क्वेश्चंस ईच हो, और वो भी 1 घंटे का एक सेट था, ये भी 1 घंटे का सेट, इसलिए वो 7 घंटे था, ये 8 घंटे। बाकी जो रेस्ट वाला 1 घंटा है वहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही। ट्यूटोरियल आप ना लेना चाहो तो 1 घंटा आप इस्तेमाल करो अपने ब्रेक्स में। अगर ट्यूटोरियल लेंगे तो फिर आप 45 मिनट्स के ब्रेक्स लेंगे, ब्रेक्स विल बी 15 मिनट्स ईच। दिस इज something in how it is actually comprised of. तो सेट्स इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और आपको बताया पहले भी मैंने कि ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, स्टेप 1 के हों, स्टेप 2 के हों, ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, लेकिन होते वो जो प्रोमेट्रिक के टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं इनके फिक्स्ड, जिनके SOPs होती हैं और दे आर ऑथोराइज्ड आल्सो, वो फिर आपको एक पूरा जो बुलेटिन आपको मिलेगा उसके अंदर पूरे सेंटर्स के लोकेशंस वहाँ पर दर्ज होती हैं। कराची में 2-3 जगहों पर है, लाहौर में है, और बहुत सारी जगहों पर। जो आपको फिजिबल लगे आप अपने फॉर्म्स को फिल इन करने से पहले वो देख लेंगे कि मुझे क्या सूटेबल कौन सा है, तो आप उसको टिक कर देंगे, तो उसको आप चेक करके आप सेंड कर देंगे, देन एवरीथिंग यू विल बी रिलेटेड। तो वो प्रोमेट्रिक के टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं, दे आर फॉर द स्टेप 1 आल्सो एंड दे आर फॉर द स्टेप 2 CK आल्सो। CS नहीं, CS ऑल टुगेदर डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। वो यहाँ आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स उसका कोई सेंटर नहीं, दैट विल बी टेकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। और यूनाइटेड स्टेट्स के भी हर स्टेट में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कुछ ही स्टेट्स में है। वो एक्चुअली सेंटर्स ही टोटल 4 सिटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद है। बस उन 5 में से जो भी आपको फिजिबल है, आप CS में जब उस जगह आप पहुँचे, उस टाइम तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही। तो ओनली 5 सिटीज़ आते हैं। वो जब हम करेंगे क्लिनिकल स्किल्स, स्टेप 2 क्लिनिकल स्किल्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ ये। तो प्रोमेट्रिक सेंटर्स मैंने बताया अभी, प्रोमेट्रिक सेंटर्स से टेस्टिंग अराउंड द वर्ल्ड मौजूद हैं, वो आपको पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये 2 एग्जाम्स आप यहीं दे सकते हैं। तो ये जो क्लिनिकल नॉलेज इज ए सिस्टम जिसमें क्लिनिकल नॉलेज इज देयर। दिस क्लिनिकल नॉलेज मींस स्टेप 2 क्लिनिकल नॉलेज, स्टेप 2 CK। इसके अंदर मैंने बताया 8 sets of the questions will be there, and each of the 40 questions means it will be 320 questions. 320 questions means 40 questions each 1 hour, और इस तरीके 320 questions आप इस तरीके देंगे। वहाँ 280 questions थे, यहाँ 320, and you have 8 hours now to spend here. And these questions are there, और आपको लास्ट टाइम हमने बताया था अभी तक जैसे मेरी स्टेप 1 में अभी तक 3 डिजिट सिस्टम का रिजल्ट सिस्टम जो है, उसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो 3 डिजिट सिस्टम चल रहा है अभी तक। फेल पास नहीं है वहाँ पर। फेल पास का मकसद है कि मिनिमम मार्क्स तो हैं डेफिनेटली, अरे मिनिमम इज 194 अराउंड, क्योंकि जो स्कोर है टोटल मैंने बताया कि स्टेप 1 इज हैविंग 280 क्वेश्चंस। 280 क्वेश्चंस मींस इट इज मार्क्स आर फ्रॉम 1 to 300। तो 280 क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो 300 है। यहाँ 320 क्वेश्चंस के मार्क्स 300 है। Means here we have got 320 marks. I say 320 questions here, but the score will be from 1 to 300. In step 1 it was 280 questions. The score was 1 to 300. Same score, same number of questions में फर्क है। And there also the score, minimum score, passing score, it was 194. Means it is around 65%. तो यहाँ पर मिनिमम स्कोर 194 है। 194 कुछ अच्छा स्कोर नहीं है। 194 means you have to actually get enough score. ये सिमिलर स्टेप 1 में आपको बताया गया कि if you pass with the smaller score you cannot repeat this exam. अगर आपका स्कोर कम है, अगर आप स्कोर आपका कम है लेकिन आप पास हो गए हैं तो यू कांट रिपीट द एग्जाम। इससे ज़्यादा बेहतर था कि कम इतना कम हो कि आप फेल हो जाएं। If we fail, then you can repeat this exam. In USMLE 1, you can repeat for 6 times. And here,
almost same is the case in the USMLE step 2 CK. तो यहाँ पर भी आप कम नंबर लें, इतने कम लें कि या तो फेल ही हो जाएं आप, या बेटर है कि आप अच्छे नंबर लें, क्योंकि अगर आपने जस्ट पासिंग नंबर लिए, क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में एक कट ऑफ परसेंटेज होती है 194 मिनिमम मार्क्स, वो तो ले लिया आपने, 200 ले लिए चले, लेकिन बहुत सारे रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में 200 उनका 220 230 240 उनका कट ऑफ परसेंटेज है, उनका कट ऑफ स्कोर उनका 240 है, और आपने लिया हुआ है 200 पास तो आप हैं, लेकिन आप किसी रेजिडेंसी में मैच नहीं करेंगे और फिर रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर है, कम नंबर लेने से बेटर है कि आदमी फेल हो जाए, ताकि कम से कम उसको रिपीट की एलिजिबिलिटी मिल जाए। रिपीट तो 4-6 दफ़ा कर सकता है, लेकिन अगर आप 195 मार्क्स लेके पास हो गए तो वो आप 5 अटेम्प्ट हो गए आपके, इससे बेटर ये है तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। और जब आप पेपर कर रहे हो उस दौरान आपको लगे कि आप का मामला ठीक नहीं हो रहा है और ये मुश्किल से ही आप पास ना हो पाएँ कहीं, तो बेटर ये है कि पेपर ही ड्रॉप कर दो और कुछ ना कुछ अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो, बेटर यही है। तो लोग करते हैं इस तरीके से। So this is something that you have seen in this also. मैंने बताया था स्टेप 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो आपको बताया थे, ये सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेकंड ईयर यानी फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल, दीज वर द सब्जेक्ट्स। एंड सब्जेक्ट्स वर लाइक फर्स्ट ईयर में आपने देखा और सेकंड ईयर में भी जो आप पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट सेम होते हैं। You have biochemistry, you have anatomy, and you have physiology. And when you enter into your third and fourth year, you have general pathology. Or you say you have pathology, because you have third year is in general pathology and fourth year is the special pathology. So both together is cardiac pathology. ये एक subject है. But we have microbiology, another subject. Microbiology एक और subject है. इसका the microbiology. This is the fifth subject. And after microbiology, the sixth subject is the pharmacology, and seventh is the behavioral sciences. तो ये 5 सब्जेक्ट थे USMLE स्टेप 1 के। तो USMLE स्टेप 1 स्टूडेंट्स अमूमन थर्ड ईयर के एंड तक स्टूडेंट्स अमूमन तैयार हो जाते हैं, तो हो सकते हैं यहाँ हमारे इस सिलेबस में स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते थर्ड ईयर तक, वो वैसे भी थर्ड ईयर में ही उनको दे देना एग्जाम, उनका कोई फायदा है नहीं, स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। Fourth year means almost at the half of the fourth year is gone. You see that you are almost done most of your general special pathology. तो सब्जेक्ट के लिए आप तैयार हो जाते हैं। बिहेवियरल साइंसेस यहाँ पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ाते, इसलिए बिहेवियरल साइंसेस स्टूडेंट खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर से आप थोड़ा थोड़ा उसमें विजिट पढ़ते जाओगे तो ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर तक खत्म हो जाता है। एंड दिस इज समथिंग यू कैन डू। जैसे मेरी प्रिपरेशन के लिए उमूमन कप्लान सीरीज वगैरह बहुत अच्छी है। USMLE फर्स्ट एड ये अर्ली बिगिनर्स के लिए अच्छा है, you can do them, but you can do these things just for the practice purpose. The real thing will be your foundation is that during your these foundation years, like for example first year, second year, third year and fourth year, these years you have to in fact adopt yourself in such a way that all these topics which are being covered here, you have to see and you have to deal with these topics. So you have to deal with these topics in such a way as if you are not preparing for your local exams, but you are preparing for the USMLE. आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो और पढ़ें आप इसी तरीके से जैसे आप USMLE पढ़ रहे हैं। USMLE पढ़ेंगे तो आपको USMLE भी हो जाएगा, लोकल एग्जाम भी हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो हमारे लोकल एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट उनके जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट USMLE स्टाइल ही हो गया है, सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो आपकी तैयारी वैसे होती जाएगी। तो साथ में उन किताबों को आप मिला के अगर पढ़ेंगे तो यू विल एक्चुअली बी ड्यूरिंग दीज प्रिपरेशंस रूटीनली भी आप जैसे आप तैयारी कर रहे हो ऐसे लगे। जस्ट बैठ के आपको मैं USMLE की तैयारी कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग यू सी इट इज लिटिल डिफिकल्ट एंड लिटिल हार्ड लुक्स लाइक। अब आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें इसी तरीके से जिसमें आपका USMLE भी हो जाए। तो दिस इज समथिंग, ये मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स की कि अभी से जो आप पढ़ रहे हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लें उसी हिसाब से।
वो जस्ट ये नहीं कि ये एग्जाम अलग है, वो एग्जाम अलग है, कोई एग्जाम अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आजकल के एग्जाम्स लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी एग्जाम्स इसी तरीके से ले रहे हैं, एलम्स में हम इसी तरीके से ले रहे हैं। यूएसएमएल के जो एनाटॉमी के एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ कि एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो यूएसएमएल के क्वेश्चंस से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे यूएसएमएल में पूछे जाते हैं। हमारे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं। So this is the thing here, but here the subjects you see that which will be asked in the exam here in the USMLE step 2 CK, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फोर्थ और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। और सिलेबस हमारा ऐसा है, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से वो फोर्थ और फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं, ज्यादातर फाइनल ईयर में, फोर्थ में तो बहुत कम। फोर्थ में आप लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हो, फोर्थ ईयर के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी, वो तो यूएसएमएल स्टेप 1 क्या सब्जेक्ट था वो तो गया वहाँ। देन सम अदर सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर बीइंग टॉट हियर is the fourth year subject, so it's called the preventive medicine. Preventive medicine, this is a subject which is in the CK. तो पहला सब्जेक्ट तो फोर्थ ईयर में आप पढ़ेंगे, तो फोर्थ ईयर पूरे में आप पढ़ेंगे क्या, पूरा फोर्थ ईयर यहाँ गुजार दोगे और सीके के लिए प्रिपरेशन में आपके पास क्या स्टफ होगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन ओनली। सारी यूनिवर्सिटियां सिलेबस से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सो यू हैव फोर्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो स्टूडेंट होता है, जिसका इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जो होते हैं, वो सीके के लिए तैयार नहीं होते। जो अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो फोर्थ ईयर के एंड तक वो यूएसएमएल स्टेप 2 सीके दे देते हैं। हमारा स्टूडेंट फोर्थ ईयर तक मुश्किल से 8 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक सब्जेक्ट में उसने उसकी शक्ल देखी हुई होती है। हाँ ये है कि थर्ड ईयर से वो थोड़ा बहुत मेडिसिन सर्जरी वगैरह कर रहा होता है, नो डाउट, तो उसकी वार्ड पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन वो लेवल नहीं होती, क्योंकि आपको सर्जरी और मेडिसिन के एग्जाम तो देने होते हैं फाइनल ईयर में, और ये उसके मेजर सब्जेक्ट्स हैं सीके के। यूएसएमएल स्टेप 2 सीके के वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने फोर्थ ईयर तक एंड तक पहुंचते पहुंचते इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट मींस आईएमजीज जो होते हैं, दे हार्डली हैव फिनिश्ड द प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक सब्जेक्ट ओनली। अभी 7 सब्जेक्ट और हैं, वो खत्म करते हैं जाके जब वो फाइनल ईयर में होते हैं। व्हेन दे एंटर इनटू फाइनल ईयर, देयर नाउ दे कंप्लीट नाउ मेडिसिन, जिसको हम इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, तो सीके का दूसरा सब्जेक्ट वहां जाके खत्म करते हैं, बट दैट टू आल्सो एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर। उसके बाद वो एग्जाम से गुजरेंगे ये सब कुछ। तो इसका मतलब हमारा जो स्टूडेंट है आफ्टर फाइनल ईयर ही विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सीके, और स्टेप 1 के लिए वो वेल प्रिपेयर्ड होगा फोर्थ ईयर के एंड में। हमारे स्टूडेंट ज्यादातर सीके और स्टेप 1 फाइनल ईयर के बाद ही देते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि यू बेटर इफ यू आर प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हो तो फोर्थ ईयर के मिड में या एंड में या फोर्थ ईयर का एग्जाम देने के बाद जब फारिग हो जाओ, आप अपनी बुकिंग डेट उसी डेट पे ले लो, आप फोर्थ ईयर का एग्जाम फोर्थ ईयर के एंड पर आप ये एग्जाम दे सकते हो। जहां आप ये एग्जाम दे रहे होते हो वहां पर अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो फोर्थ ईयर के अंदर वो सीएस देने के लिए फिट हो जाते हैं। तब तक हम नहीं हो पाते, चले नहीं हो पाते, कोई मसला नहीं है। अगर हम दे भी दें, जल्दी भी दे दें और कम मार्क्स भी ले लें या फेल भी हो जाएं तो क्या फ़ायदा, जाना तो हमें ज़ाहिर है इंटर्नशिप के बाद ही। तो अभी हमें टेक योर टाइम, अपना टाइम लें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर। एक तो इसकी बुकिंग टिकट्स आपको पता है कि इतनी महंगी होती हैं, बार बार आप ऐसे एग्जाम्स दे भी नहीं सकते, और ज़ाहिर है आपकी सीवी जो है वो उसके अंदर जब इतने फेलिंग अटेम्प्ट्स उस तरीके से होंगे तो दैट विल नॉट एक्चुअली लुक गुड आल्सो। So don't decorate your CV with failing attempts. Rather than be prepared, और अच्छे तरीके से take your time, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, गाइडेंस लें, और जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बेटर आप फील करें तो then you will actually take this exam. जल्दी न करें, तो जल्दी का आपको फ़ायदा है नहीं। आपको मार्कशीट लेके बैठ भी जाएंगे तो अभी आप तो जा नहीं पाएंगे, तो you have to actually have to wait for this, जितना आप कर सकते। वेट का मकसद ये नहीं है कि यू शुड डिले, क्योंकि डिले करेंगे तो वो भी खतरनाक है। जो पीरियड आपका मिस होगा वो जो बीच में जो ग्रेजुएशन डेट और व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द मैचिंग एंड अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी, तो उसके बीच में अगर पीरियड आ गया तो यू हैव
have a justification for this. उसके लिए आपको justification देनी होगी कि where you have been for this period. You don't have to actually be late in this also. The subjects are, you see, when you enter into the final year, तो subject आपका सबसे बड़ा उधर है internal medicine. तो दूसरा subject after preventive medicine of fourth year that you are doing in the fourth year, the second subject in the final year it is internal medicine. लेकिन उस internal medicine के अंदर in the medicine there are two more sections which you have to see here. उसका पेपर अलग होता है. पहले medicine पीड 7 होते थे, अब pediatrics is separate. तो pediatrics separate है, तो pediatrics भी आप उसी वक्त पढ़ते हैं final year. So this will be your third subject in USMLE step 2 CK. फिर जो एक और सब्जेक्ट जो मेडिसिन का ही पार्ट है, लेकिन आपका पेपर सेपरेट अभी तक नहीं हुआ है, उसका अभी सेपरेट पेपर नहीं होता है, उसके 2-3 क्वेश्चन ही मुश्किल से मेरा ख्याल आते हैं इंटरनल मेडिसिन. दैट इज द साइकियाट्री. साइकियाट्री इज अ सेपरेट सब्जेक्ट हियर, क्योंकि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स वहाँ पर उस कम्युनिटी में ज़्यादा हैं तो यहाँ पर भी ज़्यादा, लेकिन हम साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हम साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते ही नहीं. लेकिन वहाँ साइकियाट्रिस्ट जो है वो एक ज़ाहिर है सेक्रेटरी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, यहाँ भी है लेकिन वहाँ पर उसका एक अलग डायमेंशन है. तो यहाँ पर आपको तो एक और सब्जेक्ट भी वहाँ एडेड है, ये मेडिसिन का पार्ट है बट इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. 40 क्वेश्चंस आर सेपरेट इन दिस सेशन. इट इज सेक्रेटरी. दिस इज फोर्थ. एंड देन द फिफ्थ इज द सर्जरी, जनरल सर्जरी. दिस इज द सर्जरी. सिक्स्थ इज द गायनोकोलॉजी. गायनोकोलॉजी आपको सेपरेटली, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो आप फाइनल ईयर के एंड तक करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं. तो यू विल बी कंसीडर्ड रेडी फॉर दीज सब्जेक्ट्स. Considered ready for these subjects only when you have taken your final year exam. So this subject will be also gynecology, and then is the obstetrics. 7 subject आपके ये हो गए. और 8th is the emergency medicine. Means the conditions which are in fact we dealt with dealt under the supervision. Means the patient is under supervision. Means emergency medicine. This is the 8th subject. 8th set, means there are 8 different sets of the questions are prepared for these 8 subjects, and each of the set will have the 40 questions. Means 8 times 40, it will be 320 questions will be in the 8 sets, with the marking or the scoring will be 1 to 300. The maximum marks are 300 from 320 questions, where the minimum passing marks are 194. लेकिन यहाँ पास फेल तो है नहीं, यहाँ पास फेल सिस्टम नहीं है, 3 digit स्कोरिंग सिस्टम. You have to compete for this. And so here you have to actually the mean जो इसका है वो almost 240 है. 240 में भी कट ऑफ इस कट ऑफ स्कोर जो है ना वो 240 से भी कभी-कभी ऊपर होता है. तो 240 में भी आपकी शायद मैचिंग ना हो पाए. जैसे वहाँ था 300 जो स्कोर था उसमें 260 इज अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है जैसे मेरे स्टेप 1 में. तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये 260-50 की अच्छी जगह पे रेजिडेंसी के लिए मैचिंग करने के लिए 260 ये एक मैजिक फिगर है जो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स को हमेशा देते हैं. So this will be something in the basics you see. This will mean 8 subjects now you have. So 8 subjects you have to take, and 40 questions each. 1 to 300 is the score. 3 digit score will be there. USMLE step 1 में भी ऐसा ही था. क्वेश्चंस का थोड़ा फर्क वहाँ था, लेकिन मैंने बताया कि वहाँ पर 22 तक 2022 से पहले तो नहीं, उसके बाद ही they are thinking and they are actually polling and giving in fact something they are thinking about whether they will be giving you the pass fail system here or the pass fail scoring system in USMLE step 1. या नहीं, या ऐसी कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है. और USMLE step 1 जो है वो शायद 2022 तक
उसके बाद तक नहीं, उसके बाद मैंने 2022 में जो एग्जाम्स दिए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली शायद वो 3 डिजिट स्कोरिंग सिस्टम से निकल के अब वो फेल पास में आ जाएंगे। दैट विल बी बेटर थिंग। तो अगर वो पास है तो फिर अगर वो फेल पास वाला सिस्टम हो गया तो रेजिडेंसी में सारा लोड फिर इस पे आ जाएगा। दिस विल बी यूएसएमएलई सीके रजिस्टर्ड टू सीके पर इसके स्कोर पे काफी लोड आ जाएगा। फिर देन द डिफरेंस विल बी, वहां तो जो पास होंगे बहुत सारे 194 वाले पास हो गए, वो भी क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनमें और फिर अच्छे नंबर्स वाले में जो डिफरेंस होगा ना वो दैट विल बी नाउ स्टेप 2। दिस विल बी नाउ मोर इम्पोर्टेंट। फिर हो सकता है फिर 260 भी मतलब एक बॉर्डर लाइन स्कोर बन जाए, इससे भी ज्यादा ना करना पड़ेगा। So this is something about the USMLE step 2 CK procedure. लास्ट टाइम उसमें बताया था आपको कि 645 प्लस 50 मीन्स 645 में ऑलमोस्ट 700 यूएस डॉलर्स फीस है यूएसएमएलई स्टेप 1 की, लेकिन इसकी फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $850 है, तकरीबन 150,000 रुपीज इसकी फीस है, तकरीबन 1.5 लाख, तो उसकी 1.25 लाख। एंड टाइम व्हेन यू कैन टेक दिस एग्जाम, मैंने बताया आप तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन द टाइम बेटर टाइम फॉर यू व्हेन यू विल बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और यूएस स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है। डिफरेंट के इसलिए क्योंकि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो आप सिलेबस के हिसाब से देर से पूरी करें और इतना जल्दी आपको ये भी नहीं जाएगा। एंड दिस इन यूएसएमएल स्टेप 1 the thing here was prometric centers तकरीबन टेस्टिंग सेंटर्स सेम होते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे जब, तो वो प्रोमेट्रिक सेंटर की जो लिस्ट होगी उसमें आप टिक करेंगे और प्रोमेट्रिक सेंटर वो आपका एक सेंटर बन जाएगा। सेंटर आप अपनी चूजिंग का जो भी है वो आप अपनी जो भी लाइकिंग है, जो आपके लिए फीजिबल है वो आप सेंटर रखेंगे। और सेंटर्स पर जाहिर है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम भी होगा और सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होगी। आपकी आइडेंटिटी जो है वो सारी चेक होकर आपको एग्जाम के लिए अलाउ किया जाएगा। ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू हैव टू वेट, एक डे बिफोर इवन आप उस सेंटर को विजिट कर लीजिए और जिस दिन पे एग्जाम है वो आप वहाँ पर उस टाइम पे पहुँच जाएंगे जो टाइम आपको बता रहा हूँ। अब सब्जेक्ट्स तो मैंने बता दिया आपको कि ये 8 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं स्टेप के अंदर। तो क्वेश्चंस भी देख लिया आपने। हर क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली एक सिनेरियो होता है, क्लिनिकल सिनेरियो। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो यूएसएमएलई 1 में भी थे, लेकिन यूएसएमएलई 1 का जो टारगेट है ना वो है मेन कि आपको बेसिक्स कितना आता है और उसके क्लिनिकल कोरिलेशन भी हो यकीनन, लेकिन बेसिक्स आपको कितने आते हैं, क्या आता है बेसिक मैकेनिज्म कंसेप्ट्स क्या है। अगर बात हो रही है डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उस डिफ्यूजन को किसी क्लिनिकल कंडीशन के साथ कोरिलेट नहीं करेगा। स्टेप 1 is basically what is your medical knowledge, not related to clinical knowledge, medical knowledge क्या है, मेडिकल प्रोसेसेस जितने भी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड प्रोसेसेस है उसके बारे में क्या कंसेप्ट्स हैं। साइनोवियल जॉइंट है तो आप साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल क्यों कहते हैं, क्या है साइनोवियल जॉइंट में, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या प्रॉब्लम आप हैं, फीचर्स के बारे में क्या जानते हैं। This is something you have to see. The knowledge means it is the clinical, as it is the basic knowledge, mechanisms of knowledge, medical knowledge of all subjects, जितने भी 7 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पर उम्मन क्या होगा, एक क्लिनिकल सिनेरियो प्रेजेंट किया जाएगा। क्लिनिकल सिनेरियो दिस टाइम you should have the medical knowledge and now you are applying it on the clinical scenarios, clinical application of that medical knowledge. So you have to clinically apply it now. अब उसमें आपको क्या होगा, सिनेरियो आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ये क्वेश्चन एक किसी भी का भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक सिनेरियो प्रेजेंट किया जाएगा।
अंडरस्टैंड? तो वो सिनेरियो आपको प्रेजेंट हो गया। उस सिनेरियो को प्रेजेंट करने के साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन वन थिंग, लाइक व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ दिस केस। उसका डायग्नोसिस क्या है, तो सिनेरियो पढ़ें फौरन और उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस बता दें। Sometimes they will be just asking you diagnosis, probable diagnosis. Sometimes they can ask you about the prognosis of this case. What will be the further process? What will be the next thing which can happen with the patient? Whether he will be improving from that scenario onward, he will be improving, or he will be having his condition worst. Yeah, if for example he has some problem like a disease, what is the mechanism of the disease? Mechanism of disease is, say, for example, he has the injury to the lung thoracic nerve, for example, and the patient has presented with a winged scapula. What is the mechanism? Why the winged scapula is taking place? Due to the injury to the nerve, that's called the lung thoracic or the Bell's nerve. उसकी इंजरी हुई है, तो उसके विंग्ड स्केपुला का क्या वास्ता? अब उस क्लिनिकल सिनेरियो में आपने एक सिनेरियो डेवलप हुआ और विंग्ड स्केपुला के साथ अब आपसे मैकेनिज्म पूछा जा रहा है कि इस डिजीज या विंग्ड स्केपुला का मैकेनिज्म क्या, क्यों हुआ है विंग्ड स्केपुला? So you have to actually see the options and you take one. Regarding some disease in the medicine and other things, you see, regarding some diseases, they will ask you about the medical care of this patient. The best medical care, the first thing you can actually do for this patient is this. 5 options होंगे और उस सिनेरियो को देख के आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि इस पेशेंट को immediately when you have received the patient, the first thing that will be done with the patient is what? मेडिकल केयर के तौर पे आप इसको क्या देने वाले हैं? If you have actually done this case in a better way, you can say that. तो 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप ढूंढेंगे। वैसे तो वो पांचों ही ऑप्शन उस पेशेंट के लिए ठीक होंगे, बट व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू विद द पेशेंट, वो आपको पता चलेगा जब आपसे इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा। So this is something that you are asked in the exam and what you are being expected to. उसके अलावा द एग्जाम जो है ना, ये इस किस्म का जो सीके एग्जाम है, क्लिनिकल नॉलेज का जो एग्जाम है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें, ये ऐसे नहीं है। थोड़ा फर्क यूएसएमएलई में और यहाँ आपके लोकल एग्जाम में ये है कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे यू हैव टू इंटरप्रेट सर्टेन टेबल्स। ये हमारे लोकल एग्जाम्स में से नहीं होता है। हमारे लोकल एग्जाम में मोनोटोनस क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रिटन क्वेश्चंस होते हैं और फिर हम उसी के आंसर्स के नीचे ऑप्शंस ढूंढ के दे देते हैं। यहाँ कोई टेबल नहीं होता, यहाँ कोई मैचिंग क्वेश्चंस नहीं होते, इस किस्म की चीजें हम नहीं करते, हम सिंपल एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हियर टेबल्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं आप। लैब डेटा आपको दी जाती है और लैब डेटा आपको दे के उससे इंटरप्रिटेशन मांगी जाती है। लैब डेटा दे के आपको देन यू विल आस्क द डायग्नोसिस। इमेजेस, वहाँ बाकायदा उनके फोटोज होते हैं इमेजेस के, उसमें कोई एक्सरे होगा, सिनेरियो देख के नीचे एक्सरे, और सिनेरियो में नीचे एक्सरे देख के आपसे फाइंडिंग पूछ लेंगे। उसमें सीटी स्कैन होगा, उसके अंदर एमआरआई के फोटोज होंगे। तो यू विल सी दीज फोटोग्राफ्स ऑफ द एमआरआई एंड द सीटी स्कैन्स और द एक्सरेज और सर्टेन अदर इमेजेस आल्सो। तो उनकी इंटरप्रिटेशन इमेजिंग की आपको पूछी जाएगी। ये भी यहाँ हमारे एग्जाम्स में नहीं होता। हमारे एग्जाम जो मेडिसिन का, सर्जरी का, उसमें भी नहीं होता, वो वाइवा में पूछा जाता है। There are certain photographs also which will give or will depict the gross, यानी एक पेशेंट आपको दिखाया जा सकता है, उसमें कोई मॉर्बिडिटी है, अगर उसमें कोई इस किस्म का कोई इंजर्ड कोई पार्ट है या इस किस्म की चीज़, उसका फोटो आपको दिखाएंगे। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ दैट will also be shown to you, or certain microscopic also, माइक्रोस्कोपी यानी हिस्टोपैथोलॉजिकली भी आपको कोई, जाहिर है हालांकि पैथोलॉजी नहीं है ये, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में आपने सैंपल भेजा है, उसकी रिपोर्ट ये आई है, आप पढ़ के बताएं, इंटरप्रेट करें उसको। यू हैव टू एक्चुअली सी दिस आल्सो। ये यहाँ पर मौजूद है, तो आप जाहिर रूल में आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
हम लोग यहाँ पे जो कि एनाटॉमी में स्टूडेंट्स से कम ही पढ़ते हैं, इमेजेस वगैरह। आप देखिए स्नेल भी है, उसके पीछे इमेजेस हैं, सीटी स्कैन से इमेजेस हैं। तो उनको आप अभी से देखना शुरू करोगे तो फिर एबनॉर्मलिटी, ये फ्रैक्चर्स और ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाइडेंस है तो अभी से आप एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करेंगे, बोथ द एग्जाम्स शुड बी प्रिपेयर्ड विद द सेम प्रिपरेशन, ताकि दोनों ही आपका साथ हो जाए। ये लोकल एग्जाम भी हो जाए तो साथ में आपकी प्रिपरेशन भी मौजूद हो। ऐसा लोकल एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करें वो सिर्फ लोकल के लिए हो, यूएसएमएल के लिए आप अलग से तैयारी करें, ऐसा क्यों करें? आप अपनी स्टडीज को इस तरीके से रखेंगे तो आपके लोकल एग्जाम्स भी अच्छे हो जाएंगे। एग्जाम्स में इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बताया, ये कलेक्टिव एक तरह से एक कोलैबोरेटेड एग्जाम होता है, इंटीग्रेटेड एग्जाम है। तो इंटरप्रिटेशन आपकी टेबल्स की वही सारी चीज़ें इस तरीके से की जाती है। मैंने बताया ये 3 डिजिट स्कोर है 1 to 300, लेकिन क्वेश्चन इसके 320। मीन स्कोर जो है 240 होता है इसमें। इसका भी कट ऑफ स्कोर होगा, इसका भी होता है कट ऑफ स्कोर। हर रेजिडेंसी प्रोग्राम का अपना कट ऑफ स्कोर, उस चीज़ को आपको जहन में रखना होगा। यू शुड हैव तो हमेशा वो जो शाइनिंग स्कोर है 260 जो फिगर है ना, वो उसको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स उन्होंने हमने देखे हैं अच्छी जगहों पर रेजिडेंसी उन्हीं को मैचिंग होती है जो 260 मार्क क्रॉस करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, लेकिन कम भी हो जाते हैं कभी कभी। क्योंकि ये है कि ये एक मैजिक फिगर है जिसको अपने दिमाग में हमेशा रखें। So in this you have been actually told here also, अभी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर सेकंड ईयर के भी हैं और इससे भी आगे, लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि तुम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और ग्रास एनाटॉमी जितने भी रीजन्स हैं जो भी आप कर रहे हैं अभी से, जितने भी हैं अभी तो आप सेकंड ईयर वाले तो जाहिर है अभी हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी आखिरी 2 सेशंस हैं, इससे पहले वो रीजन कर चुके हैं। अब जो कर चुके हैं वो तो हो गया, चलो अब उसकी दोबारा तो तैयारी नहीं होगी। अब तो आप जाहिर यूएसएमएल के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो यहाँ अभी जितने भी रीजन्स हैं, अब जैसे हेड एंड नेक और बड़े चैलेंजिंग रीजन्स हैं दोनों, अभी आप उसको इसी तरीके से करो जैसे आप यूएसएमएल की प्रिपरेशन करते हो। कम से कम चलो ये 2 रीजन्स उस तरीके से हो जाए। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो आप अभी से, क्योंकि अभी आपने मुश्किल से मेरा ख्याल है लिम्स की हैं और एक आप करोगे अभी एब्डामेन, रीजन्स बहुत हैं अभी। इन रीजन्स को आप इस तरीके से करें कि आप यूएसएमएल की प्रिपरेशन साथ होती जाए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए आप फर्स्ट एड यूएसएमएल उसको देख लें किस तरीके से आते हैं, और साथ में कप्लान सीरीज जो है वो मोर एलाबोरेटेड है, उसको भी साथ साथ आप करते रहें। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। और जब ये आपके 2 स्टेप्स कवर हो जाते हैं, स्टेप्स तो 2 नहीं, ये 1.5 है एक तरह से, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सीके, then you will be actually given, or you will be eligible for the visa to go there and will be appearing for another exam, that is a USMLE step 2 CS, that is called the clinical skills. Clinical skills is a totally different ball game, वहाँ मामला बिल्कुल अलग है। वो अब ऐसे ही है जैसे हमारा वाइवा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसे भी नहीं है बिल्कुल इट्स ऑल वर्बल और एवरीथिंग यार, बिल्कुल वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से स्टैंडर्डाइज पेशेंट्स होते हैं, और वो स्टैंडर्डाइज पेशेंट्स से में कैलकुलेशन होती है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, मैकेनाइज्ड है वो सारा कुछ। ये ऐसे नहीं है कि वाइवा में टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछे और टीचर का ध्यान कहीं और है और उसका मूड आज ठीक नहीं है, वो ऐसे मूड ओरिएंटेड नहीं है। सबसे बहुत ही कैलकुलेटेड एग्जाम्स होते हैं एंड दीज आर हैविंग गुड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यूएसएमएल स्टेप 1 अगर आप वहाँ मैचिंग नहीं होती है तो इन स्कोर्स के साथ आप दूसरे कंट्रीज में, इवन दूसरे इवन हेल्थ सिस्टम्स के अंदर दूसरे कंट्री में, जैसे यूएई के अंदर यूएसएमएल एक्सेप्टेबल होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इवन ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में भी यूएसएमएल 1 और सीके अगर दिया हुआ है तो
पार्ट 1 में एग्जाम कर देते हैं उसका। दिस वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द थिंग्स। यहाँ मेरा एम्फेसिस ज़्यादा ये है कि आपको एक आउटलुक मिल जाए कि एग्जाम होते क्या हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेट है, आपको तैयारी कैसे करनी है। असल चीज़ ये है, क्योंकि असल चीज़ ये नहीं है कि एग्जाम में सवाल कितने होंगे, या असल चीज़ है कि हम जवाब कैसे दें, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और वो है कि आप अपने इस पूरे सिलेबस के दौरान पढ़े ही इसी तरीके से, जैसे आपको ये एग्जाम नहीं देने हैं, आपको यूएसएमएलई के एग्जाम। तो जाहिर है अगर एक बहुत अच्छे एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो लोकल एग्जाम्स तो आप पास कर ही जाएंगे आराम से। लेकिन आप पढ़ेंगे लोकल एग्जाम्स के लिए तो फिर उसके लिए आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। मैंने देखे बड़े मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे तो हैरान ही कर दिया, उन्होंने बताया नहीं कि वो यूएसएमएलई के लिए प्रिपरेशन करते, एवरेज स्टूडेंट, दे गॉट वेरी गुड मार्क्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं लेते हैं। हमारा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अभी उसने रेजिडेंसी शुरू की कि वो उसकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई इधर। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले उसकी रेजिडेंसी फिलाडेल्फिया में, शायद उसने इंटरनल मेडिसिन में स्टार्ट की उसने रेजिडेंसी, तो मैच हुआ है वहाँ। लेकिन ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो इंटर का पोजीशन होल्डर था, इंट्री टेस्ट का पोजीशन होल्डर था, वो ऑल थ्रू आउट ऑल प्रोफेशनल्स उसके गोल्ड मेडल से, उसने भी अच्छे नंबर लिए, ऐसा नहीं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट ने भी लिए हैं। स्टूडेंट था, जब वो मैच हुआ तो मैं खुद हैरान रह गया था। उसमें 3-4 साल मेरे पास पढ़ के गया था, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। ये भी हो सकता है, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ हवा है, लेकिन ये है कि आपको ट्रैक मिल जाए एक दफा। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी अगर बहुत गलत तरीके से पढ़ेंगे, मकसद है कि अपना टाइम बेकार चीज़ों में ज़्यादा देंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। और एक चीज़ के बारे में आप इतना जाने, मतलब है कि शुड बी नेक डीप उसमें आप चले जाएं जब कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, और उसके अगेंस्ट आप 4 बल्कि 40 चीज़ें और छोड़नी पड़े आपको। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में जो वो पूछ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नी हाई, आप किसी चीज़ में पानी में जाएं तो वो नी से ज़्यादा ऊपर पानी ना हो, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं, इतना जानते हैं कि टीचर को इतना नहीं आता, और आप उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता चला कि आपको मसल के बारे में पता ही नहीं है। तो एक बैलेंस रखना होगा, हर चीज़ के बारे में आपको आ रहा हो, इससे ज़्यादा नहीं, बस ठीक है आप इतना आ रहा हो कि बस नी हाई, बस इतना है सफिशिएंट। इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा पानी में नहीं उतरना है, ताकि सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाए जल्दी में। दिस वाज the discussion today. I am giving you some time if you have the answers. The questions अगर आपको हैं कोई, तो you can put the questions and I will give you the answers. And I am opening your mics and unmute. मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप अपने आप को प्लीज म्यूट करके रखें, और जिनको क्वेश्चंस करना हो या तो रेज कर दें हैंड। चलिए आप ऐसा करें, अपने हैंड रेज कर दें, फिर मैं उसका माइक खोल देता हूँ। And I'm giving you some time for the questions. तो थोड़ा टाइम आप क्वेश्चंस के लिए दे देते हैं। अगर आप क्वेश्चंस मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी करना चाहें तो यू कैन डू, आप चैट करना चाहें तो चैट कर सकते हैं। Yes, Mr. Jatin. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आपने जो कैप्लान की सीरीज है वो सर फर्स्ट ईयर से शुरू कर देनी चाहिए। फर्स्ट शुरू ईयर कर में दे, क्यों नहीं। कैप्लान आप एनाटॉमी का ले लें, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, आप कैप्लान सीरीज शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने सब्जेक्ट्स के और यूएसएमएल फर्स्ट एड बिगिनर आप वहां से करें, कैप्लान बाद में कर लें। बिगिनर के लिए अच्छी है यूएसएमएल फर्स्ट एड, अच्छा है। और लेकिन
मैं ये कह दूं कि ये सारे एग्जाम्स, ये जितने भी यूएसएमएलई के जो बुक्स हैं ना, आपको ये आपको गाइड करेंगी कि एग्जाम उनके कैसे होते हैं। अच्छा लेकिन वो जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उस पर फोकस ज्यादा जी सर। करें। मतलब आपको अच्छा तैयार सर। हो, साथ आपको हो आइडिया कि बाबा मुझे ये एग्जाम भी देना है, वो भी, तो मैं देखूँ तो सही उनके एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि आप यूज हो जाए, अडॉप्ट कर लें अपने आप को कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना, वो जो आप पढ़ते हैं ना डेली बेसिस पे, जो आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, उन टॉपिक्स को नोट करके उनको करते रहें आप। यही होंगे क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग तो वहां जैसा वहां है वैसा यहाँ है ना। जो विंड स्केप जिस प्रॉब्लम के साथ उनके साथ होगा, उसके साथ आप हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने एक सिंपल आपको बताया, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है तो आपको हेड एंड नेक अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब वो टॉपिक था, उस टॉपिक को फोकस करके अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि यूएसएमएलई फर्स्ट एड आपके पास हो, आपका अपना स्नेल भी सफिशिएंट है, उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम उसी पैटर्न से आएगा, और साथ में वो भी कर लें। इसलिए आपकी थैंक यू। तैयारी यूं समझ ले, आप रोज जो है ना, वो ये नहीं कि आप यूएसए में, अगर आपको यूएसए में ली फर्स्ट एड आपके पास किताब नहीं है, कोई मसला नहीं, जब तक आ ना जाए तो समझ नहीं कि जब तक नहीं आएगी तब तक मैं तैयारी नहीं करूँगा। ये डेली जो आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो जो टॉपिक हो वो आप दोनों तरीकों से करें। लोकली जो एग्जाम ले रहे हैं उस तरीके से भी, और यूएसएमएल वाले कैसे क्वेश्चन आंसर उनके किस तरीके से होते हैं, उनके दोनों साथ पढ़े। सर थैंक यू सर। इसमें से जब सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो आ रही है, पूछे आप सर। क्वेश्चन मैं पूछे अभी जल्दी से। सर मैं अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ लम से। ठीक है सर। सर क्योंकि सर जो हमने अभी थर्ड ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फार्मा और पेथो, वो तो हम सही नंबर से अभी 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 से कर रहे हैं। ठीक है सर। मेन जो प्रॉब्लम है जो फर्स्ट ईयर की जो एनाटमी थी वगैरह, उसमें न्यूरो वो तो एनाटमी ट्रेन तो निकल आपसे गई कही। है फिलहाल। अभी वही हाँ है ना। मैं कह रहा था कि आज की क्लास का सबसे बड़ा फायदा जो है ना, वो फर्स्ट ईयर वालों को होने वाला है, अच्छा क्योंकि सर फर्स्ट ईयर जो वालों ने न्यूरो अभी मुश्किल से 2 लिम्स ही की हैं। अब तीसरे से मैंने अच्छा जी बहुत सर। पहले ही से हमने उनको तैयार करने की कोशिश की है। तुम लोग वो ट्रेनें नहीं निकाल चुके हो, लेकिन ये है कि निकाल नहीं चुके सर हो का हमने मकसद ये नहीं है कि आप दोबारा कर नहीं सकते, सर कर सकते हैं। सर हमने एनाटमी मतलब सही पढ़ी है, न्यूरो एनाटमी आपसे पढ़ी है, वैसे भी अच्छी पढ़ी है, मगर फिर भी मतलब हमारे जो ख्याल में तो हमने कुछ थोड़ा हमारा रहता है, तो हम उसको अभी से कवर कर लें या बाद में अगर टाइम मिले तो बाद में उसे टाइम नहीं मिलेगा, अभी कोशिश करें कि अभी से कवर हो जाए तो अच्छा है। अगर नहीं होता है तो चलो ठीक है, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, जी हाँ सर। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो आप हाँ सर अभी तो उसको उनको आप उसी तरीके से करें फिलहाल। हाँ सर क्योंकि सर अभी तो जो चल रहे हैं अभी बंदा उससे करे तो बेहतर रहेगा। अगर सेमेस्टर ब्रेक होता है या एनुअल ब्रेक होगा तो उसमें अगर हम उसको पिछले जो हम रहते हैं उसको रिवाइज कर लें तो बेहतर है। ठीक है जबार।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ KMDC से, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। सर अभी आपने जिक्र किया था कि अभी आप कह रहे थे कि एनाटॉमी के क्वेश्चंस कोई क्वेश्चंस USMLE की तरह ही होते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे? हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, क्योंकि आप मेरी ईमेल आईडी होगी आपके पास या व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मुझे अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल्स भेजूंगा और ऑलमोस्ट दे आर आइडेंटिकल, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। देखो कंडीशंस, आप जब एनाटॉमी पढ़ें या कोई सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एनाटॉमी पढ़ें तो आप उसको पूरे तरीके से पढ़ें, आपके हर तरीके का एग्जाम जो है ना वो उससे कवर हो जाएगा। जैसे मेरी एनाटॉमी की जितनी भी मैंने बुक्स लिखी हुई हैं, अगर वो आपको अच्छे तरीके से आती हैं, आप दुनिया कोई भी एग्जाम जाके दें, एग्जाम एनाटॉमी का एग्जाम के क्वेश्चन से हर जगह हर एग्जाम में इसी तरीके से होते हैं, वो आपके क्वेश्चंस कहीं भी नहीं जाएंगे। मकसद ये कहने का है कि आपको अगर ट्रैक आ रहा है कि उस तरीके से हम पढ़ना है आपको, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुश्किल है। शुरू से ही आप अपना पैटर्न बना लें। आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे इस किस्म के क्वेश्चंस नहीं कर रही है तो फिर आप अपने आप को इस तरीके से करें कि बाबा मुझे क्लिनिकल सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ चलो मुझे लोकल एग्जाम्स पास करने में थोड़ा सा मुझे बेसिक तो हर हाल में आपको पढ़ना है ना। बेसिक पढ़े बगैर आप क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस भी आप नहीं दे सकते जवाब उसका। बेसिक आप पढ़े। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आप, जैसे मैंने एनाटॉमी की मिसाल मैंने देख के बताई थी कि जब आप एनाटॉमी का कोई टॉपिक उठाएं तो आप उसको 4 फेजेस में पढ़ें। एक ये कि शुड बी प्योरली बेसिक, कोई क्लिनिकल नहीं उसमें। जैसे बोन आप पढ़ रहे हैं अगर, तो बोन के, लेकिन इतना ना उसको डिटेल में बैठ के आप उसके बेसिक्स पढ़ें कि आप उसके अंदर समझ जाएं कि आपको कोई उस बोन के ऊपर कोई आपको इनफिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमर हाथ में पकड़ें, उसके 15-20 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करके उसको फेंक दे, बस बोन हो गया। ये फेज 1 है। फेज 2 में क्लिनिकल कोरिलेशंस, मकसद ये है कि इस फीमर को लेके कौन से मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी हैं जिसकी वजह से कौन से बोन्स के कौन से पार्ट्स फ्रैक्चर होते हैं। ये फेज 2 है। फेज 3 में वर्ल्ड ओवर बहुत सारे एग्जाम्स को लेके फीमर को लेके कौन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बेसिक एग्जाम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसएमएल स्टेप 1 में या फिर 2 को फिलहाल ना भी आप फिलहाल रखें ज़हन में क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में। तो फ्रैक्चर को लेके कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये स्टेप 3 है। ये यानी ये स्टेज 3 है आपके पढ़ाई का, ये फीमर पढ़ रहे हैं आप। और चौथा स्टेप जो है वो ये है कि आप देखेंगे को फीमर को लेके अगर आपको कोई केस प्रेजेंटेशन मिल जाती है तो केस प्रेजेंटेशन आप देखें और उसके नीचे देखेंगे आपसे क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ये हर टॉपिक आप 4 फेजेस में पढ़े। ये एनाटॉमी की बात बता रहा हूँ, उसी को लेके फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लाइकवाइज पढ़ते जाएंगे तो आपकी स्टडी, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती जाएगी। और फिर आप किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये, कोई भी एग्जाम हो ना, फिर आपसे वो एग्जाम दूर नहीं है, फिर मुश्किल नहीं है आपके। किसी खास एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप होंगे ना तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को ऐसे रखें कि दिस शुड बी फॉर ऑल एग्जाम्स। उसके लिए जरूरी है, जैसे मैं एनाटॉमी की हमेशा मिसाल देता हूँ या एम्ब्रियोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की, इसको आप 4 फेजेस में पढ़ें। बेसिक, क्लिनिकल कोरिलेशंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड केस प्रेजेंटेशन। बस आप इतना कर लें। किसी टॉपिक के बारे में मुझे बताएं कि दुनिया का कोई एग्जाम किसी किस्म का क्वेश्चन वो आप न कर पाए, मैं गारंटी से कहता हूँ आप कर लें। हाँ, 10 बताओ सर। हम फर्स्ट ईयर का कोर्स तो भूल गए हैं तो हम उसका क्या करें? भूल कुछ नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। भूलना वो कहता है जो याद करता है, जो याद होगा तो ही भूला जाएगा। ये याद नहीं है, इसको याद नहीं करना होता है। एनाटॉमी या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने याद करने के लिए आप बैठे तो फिर आप तैयार हो जाएं भूलने के लिए। याद करना कुछ नहीं होता है, आप उसको समझें, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए उसका कंसेप्ट आपको अगर आ गया तो फिर उसको भूलना नहीं कहते। आप बैठ के आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये अब सारी मसल्स के नाम याद हों, उनकी ओरिजिन सेशंस याद हों, फिर तो किसी को भी याद नहीं होती। मेरे अलावा बाकी तो सभी भूल जाते हैं। मैं क्यों नहीं भूलता हूँ? क्योंकि मैं याद नहीं करता।
जी तो जी या आप अभी कमरे में बंद करके कहें कि 2 हफ्ते से आप इस कमरे से न निकले, आप सारी न्यूरोनाटमी हमें लिख के इन पेजों पे दे दें, मैं आपको लिख के दे दूंगा, क्योंकि मेरी याद की हुई नहीं है। याद न करें कोई सब्जेक्ट आप, इससे आप मैंने बताया ये क्यों याद, ये आप कहें मुझे भूल जाते हूँ या मैं भूल जाती हूँ, क्यों? वजह इसकी ये होती है कि आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पढ़ना कोई चीज नहीं है, पढ़ाना ही सब कुछ है। असल चीज है पढ़ाना। पढ़ाने का मकसद है कि जो आपने पढ़ा है वो आपने कितनों को पढ़ाया है, अंडरस्टैंड? तो वो आप डिस्कशंस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आपसे चीजें नहीं भूलेंगी। तो वो जब डिस्कशन करेंगे तो आपसे चीजें नहीं भूलेंगी। लेकिन मैंने बताया उसको पढ़ने का तरीका ये है कि वो जो चीजें आप करेंगे तो उनको 4 फेजेस में आप करेंगे। एनाटॉमी की मिसाल में बार-बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई एम बेसिकली आई बिलोंग टू एनाटॉमी, मैं आपको ज्यादा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट सारे से रिलेटेड। बेसिक पहले करें, उसके बाद आस्ते आस्ते, जैसे मेडिसिन आप करेंगे ना, जब आप जाएंगे फाइनल ईयर में मेडिसिन जब आप करेंगे, पहले जिस पार्ट की डिजीज आप कर रहे हैं उस पार्ट की एनाटॉमी पहले करें, 6 लाइनों में क्यों ना हो चले, फिर उसकी हिस्टोलॉजी करें, उसकी एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा देखें, फिर उसके साथ फिजियोलॉजी करें, 6-6, 8-8, 10 लाइनें, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं सारी चीजें, अब आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी से तैयार हो जाएं इन चीजों में। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ मोहित, मोहित हो? हाँ बताइए। सर, आपने कहा सर कि जो है ये बेसिक है, हाँ, तो उसमें हमें इतना डीप नहीं जाना। डीप नहीं जाना। पर सर हमारा डीप जो पर जो जाएगा, बीडी जो डीप बीडी है, बीडी को तो फोर्थ हुए मेरे ख्याल को 20-50 साल हो गए। बीडी है तो किसने रिकमेंड किया है बीडी, मुझे बताओ। सर लम्स के सीनियर्स ने रिकमेंड किया कि आपको अगर ग्लैंड क्लियर करना सीनियर है। से मुझे आप बताओ, जब तुम बीमार हो जाते हो तो अपने सीनियर से, घर में अपने जो सीनियर सिटीजन, जो सीनियर आपके घर के अंदर मेंबर है, उससे इलाज कराते हो कि डॉक्टर से इलाज कराते हो? सर डॉक्टर सर। तो फिर आप सीनियर से क्यों नहीं कराते? आपके वालिद तो आपके डॉक्टर से ज्यादा सिंसियर हैं। आप पर सिंसियर तो आदमी से, फिर सर जो गुजर चुका है उससे पूछते ना जो सर हम गुजर कि चुका भाई है, कैसे वो किया। जो गुजर चुका है वो अगर गलत है, अगर वो मिसगाइडेड है, तो तुम उसको फॉलो करोगे? सर टॉपर्स है ना सर। टॉपर्स हैं तो वो टॉपर्स इस वजह से नहीं हुए होंगे, वो टॉपर्स की कोई और क्वालिटी हुई होगी। अब जो टॉपर है तो उसने क्योंकि गलती से पढ़ लिया है बीडी चौरसिया, इसलिए टॉपिक, अभी जो लोग जिनकी डेथ हो रही है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, बट दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ द मायोकार्ड इन्फेक्शन, तो मैं क्या कहूंगा कि वो कोविड की वजह से मरे। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने वो भी पढ़ा होगा, तो पढ़ने के साथ उसने 10 और भी किताबें पढ़ी हैं। सर तो कौन सी सब बुक आप रेकमेंड करेंगे कोई सर कि मतलब उसमें? मैंने आपको कहा है कि इसके लिए स्नेल बेस्ड है, उसके बाद अगर वो पूरा हो जाए तो इससे आगे आप कीथल मोर पढ़ लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। साथ में जो है वो जरूरत भी नहीं है कीथल मोर पढ़ने की, यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप उतना कर लें। लेकिन मैंने बताया जो भी आप करें, हमेशा बेसिक, तो मैं कहता हूँ कि स्नेल में बेसिक स्नेल में जरूरत से ज्यादा ही ना लिखी हुई हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप लम्स के हैं, आप लम्स के हैं ना? जी सर लम्स वो के मैंने आपको मैनुअल्स में दिया हुआ है। मैंने बताया मेरे पहले जो मैनुअल्स हैं वो इतने डिटेल में लिखे हुए हैं, उसके बाद जो मैंने मैनुअल्स निकाले आप देखें जाके उनको कितना फर्क है। वो इसलिए है क्योंकि अब वो एग्जाम नहीं रहे इस तरीके से कि आपको किसी बॉडी के पार्ट्स के बारे में 3-3 पेज लिखना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ। अभी सारे क्लिनिकल सिनेरियो टाइप है, वो क्लिनिकल सिनेरियो है, उसमें आपको फीमर के बारे में 6 पेज पढ़ने की क्या जरूरत है क्या जरूरत? अभी जो आपके क्लिनिकल सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आखिर में कोई किसी ने पूछा है आपसे फीमर के पार्ट्स पर 2 पेज का ऐसे लिखो? किसी ने पूछा आज तक? तो फिर क्यों पढ़ेंगे आप फीमर सारा? लेकिन इसलिए पढ़ेंगे ताकि उसके आप 15-20 जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है वो आपको समझ में नजर आ जाएं, आइडेंटिफाई कर पाए आपको, क्योंकि आगे से जो सिनेरियो डेवलप होगा उसमें ट्रॉकेंटर वर्ड, लेसर ट्रॉकेंटर, फलां, ये वो, इंटरट्रॉकेंट्रिक लाइन, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, ये इस किस्म के नाम आएंगे। और जब नाम आएंगे तो वो कैसे आप जान पाएंगे जब तक आप इनके नाम आपको, इसलिए आपको इतना पढ़ना है। तो इसकी वजह से मैंने आपको देखा, जो आप मेरे नए मैनुअल देखें आप, तो प्रीवियस मैनुअल से लोअर लिम्ब का मेरा 250 पेज का है, जो नया है वो मुश्किल से 99 पेजेस का है, वो सफिशिएंट है, उससे भी हो जाएगा पूरा। सो मैनुअल भी सर आपके सर नहीं मिल रहे सर लम्स से भी देखा मैनुअल तो वो पुराने सारे मिल सोल्ड रहे आउट हैं। हैं, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है अभी नए साल में तो हमने कोई मैनुअल शायद प्रिंट करवाया नहीं, मैंने देखेंगे कभी करेंगे कुछ ना कुछ, वरना मैं ठीक सर, थैंक यू थैंक यू।
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अनिशा बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जो टाइम पीरियड होता है यूएसएमली पार्ट 1 में और यूएसएमली पार्ट 2 जो सीके, उसमें इतना टोटल मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम पीरियड एक मिनिमम टाइम है, वो बुलेटिन में आपको मिल जाएगा वो, लेकिन यह है कि आप अपने टाइम लाइन को इंटैक्ट रखें, क्योंकि उनके बीच में जो टाइम लाइन अभी मैंने बताया ना, टाइम लाइन क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 एक साथ भी दे सकते हैं आप, स्टेप 1 और सीके आप एक साथ भी दे सकते हैं सीक्वेंस में, वो पहले आप सीके दे दें, स्टेप 1 बाद में दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट फाइनल ईयर वाले होते हैं ना, जैसे फाइनल ईयर वाले तो अभी भी फाइनल ईयर दिया है, अब फाइनल ईयर दिया है, स्टेप 1 पहले देंगे, उसके बाद सीके देंगे बाद में, अभी वो रिफ्रेश हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने फाइनल ईयर में 4, 5, 6 सब्जेक्ट किए हुए हैं, दैट इज रेडी फॉर द सीके, सीके पहले दे दें, उसके बाद 4-6 महीने प्रिपरेशन करके स्टेप 1 बाद में दे दें, तो आप कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा कि आपने कहा हमें यूएसएमडी या किसी भी मेडिकल टेस्ट की ऐसे तैयारी करनी चाहिए जैसे हम किसी दूसरे बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप प्लेब भी हो जाएगा इससे, मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्लेब भी किया हुआ है इसी प्रिपरेशन के साथ, जो फर्स्ट ईयर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर से मेरे पास थे और उनको हमने प्रिपेयर किया है, भाई इसी तरीके से आप पढ़ें, दुनिया कोई एग्जाम मैंने हर ये एग्जाम से, हमारे एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बिलीव करें वो। तो सर उस हिसाब से तो हमें पहले अगर हमें बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर होना है तो हमें फर्स्ट एड और कैप्लान दोनों साथ साथ पढ़ें, हाँ, या साथ जस्ट पढ़ें, क्योंकि वजह ये है क्योंकि उनके एग्जाम्स के तरीके मुख्तलिफ है ना, जाहिर है वो किस तरीके से पूछते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, यूएसएमएल स्टेप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, वो आते सेम ही हैं, तो लेकिन ये आपको उसके लिए प्रिपरेशन जो है ना वो जाहिर है। करते करते करने हैं। मिस निशा, आई एम सॉरी जी, आप कुछ कह रही थी? Hello, Assalamu alaikum, sir. Mr. Tala. Sir, can you provide us details regarding UKMLE? UKMLE? Actually, Sir, PLAB. The PLAB, actually PLAB का आज डिस्कशन का टॉपिक था नहीं, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हमारा एक सर दरअसल यानी कि USMLE और PLAB में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है या फिर? बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है। एक्चुअली PLAB जो है ना वो बेसिकली USMLE स्टेप 2 CS और CK की मिक्सचर है एक तरह से, ठीक सर। हाँ, उसमें स्टेप 1 का एक जो रोल होता है ना वो नहीं है। अच्छा सर, 10% 5% से ज्यादा नहीं। एज पर डिफिकल्टी सर, एज पर डिफिकल्टी USMLE और PLAB में कितना % डिफरेंस आता है दरअसल? बहुत ज्यादा, यानी कि दोनों में सक्सेस रेशियो कितना? PLAB को आप यूं समझ लो कि आप AMC के साथ आप मैच कर सकते हो, USMLE जो है ना वो मोर एलोबोरेटेड है। ठीक सर। अच्छा सर, कोई वेबसाइट है जहाँ से PLAB के बारे में फुल ओरिएंटेड डिटेल्स मिल पाए सारी? PLAB के बारे में हम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कशन, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो कवर करके हम वेबिनार जो नेक्स्ट हमारा थर्ड होगा फॉर USMLE स्टेप 2 क्लिनिकल स्किल्स के फिर हम इंशाल्लाह PLAB की तरफ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा गाइस,
it's been too long now. Abhi you have to, in fact, we have to stop here. जितने अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो they can send me messages through WhatsApp. I will try to give the voice messages to them. तो आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह थोड़ा सॉल्व हो जाएंगे. आज की डिस्कशन और प्रीवियस वेबिनार को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो माय व्हाट्सएप नंबर आपको पहले ही होगा आपके पास, जहाँ से लिंक आए हैं आपके, and I will try to solve these things. So it has been a good time with you. Thank you very much. All the best.